दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। आज मैं बात करूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 243 जेड ई के बारे में, जो बताता है महानगर योजना के लिए समिति। महानगर योजना के लिए एक समिति होनी चाहिए। समिति का गठन कैसे होगा, उसके बारे में इस आर्टिकल के माध्यम से बात की जा रही है। 243 आर्टिकल जेड ई says Committee for Metropolitan Planning. Number 1, there shall be constituted in every metropolitan area a metropolitan planning committee to prepare a draft development plan for the metropolitan area as a whole. Number 2, the legislature of a state may by law make provision with respect to number A, the composition of the metropolitan planning committee. Number B, the manner in which the seats in such committees shall be filled, provided that not less than 2/3 of the members of such committee shall be elected by and from amongst the elected members of the municipalities and chairpersons of the panchayats in metropolitan area in proportion to the ratio between the population of the municipalities and of the panchayats in that area. Number C, the representation in such committees of the government of India and the government of the state and of such organizations and institutions as may be deemed necessary for carrying out of the functions assigned to such committees. Number D, the functions relating to planning and coordination for a metropolitan area which may be assigned to such committees. E, the manner in which the chairpersons of such committees shall be chosen. Number 3, every metropolitan planning committees shall in preparing the draft development plan A have regard to 1, the plans prepared by the municipalities and the panchayats in the metropolitan area. Second, matters of the common interest between the Number 2, matters of common interest between the municipalities and the panchayats, including coordinated spatial planning of the area, sharing of water and other physical and natural resources, the integrated development of infrastructure and environmental conservation. Number 3, the overall objectives and priorities such by the overall objectives and priorities set by the government of India and the government of the state. Number 4, the extent and nature of the investments. The extent and the nature of investments likely to be made in the metropolitan area by the agencies of the government of India and of the government of the state and other valuable resources, whether financial or otherwise. Number B, consult such institutions and organizations as the governor may by order specified. Number 4, the chairpersons of every metropolitan planning committee shall forward the development plans as recommended by such committee to the government of the state. अब मैं इसको हिंदी में पढ़ लेती हूँ। क्या कहा जा रहा है? अनुच्छेद 243 या वहाँ, संविधान का अनुच्छेद 243 या वहाँ, महानगर योजना के लिए समिति। नंबर 1, प्रत्येक महानगर क्षेत्र में संपूर्ण महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करने के लिए क्या आ रहा है कि प्रत्येक महानगर क्षेत्र में संपूर्ण
महानगर क्षेत्र के लिए। ऐसा नहीं कि जहाँ पर कुछ ऐसे जो सेक्शंस रहते हैं उनके वहाँ पे विकास नहीं करना छोड़ दो, तो इस टाइप से नहीं। संविधान का अनुच्छेद कह रहा है कि संपूर्ण महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करना। विकास क्या क्या करना है उसके लिए एक योजना, एक प्रारूप तैयार करना होगा। उसकी बात की जा रही है। एक महानगर योजना समिति का गठन किया जाएगा। एक महानगर योजना जो समिति है, कमेटी, उसका गठन किया जाएगा। उसके माध्यम से ये कार्य आगे बढ़ाया जाएगा। नंबर 2, राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा निम्नलिखित की बाबत उपबंध कर सकेगा। इसके लिए जो उपबंध है उसके लिए राज्य का जो विधानमंडल है उसके ऊपर ये सारी जिम्मेदारी है कि वो उसके लिए उपबंध बनाएगा। नंबर का, महानगर योजना समितियों की संरचना। नंबर का, महानगर योजना समितियों की संरचना करनी होगी। नंबर खा, वह रीति जिससे ऐसी समितियों में स्थान भरे जाएंगे और ऐसी रीति जिसके द्वारा उन स्थानों को भरा जाएगा, परंतु ऐसी समिति के कम से कम 2/3 सदस्य महानगर क्षेत्र में नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों और पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा अपने में से उस क्षेत्र में उस क्षेत्र में नगर पालिकाओं की और पंचायतों की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार निर्वाचित किए जाएंगे। जो भी उस क्षेत्र में नगर पालिकाओं की और पंचायतों की जो जनसंख्या है उसके अनुपात के अनुसार निर्वाचित किए जाएंगे। नंबर गा, ऐसी समितियों में भारत सरकार और राज्य सरकार का तथा ऐसे संगठनों और संस्थाओं का प्रतिनिधित्व जो ऐसी समितियों को संदिष्ट कृत्यों को कार्यान्वित करे, यानी समुचित रूप से उन कृत्यों को, उन कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक समझे। नंबर घा, महानगर क्षेत्र के लिए योजना और समन्वय से संबंधित ऐसे कृत्य जो ऐसी समितियों को समुदिष्ट किए जाएं, वह रीति जिससे ऐसी समितियों के अध्यक्ष चुने जाएंगे। नंबर 3, प्रत्येक महानगर योजना समिति विकास योजना प्रारूप तैयार करने में नंबर का निम्नलिखित का ध्यान रखेगी। वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं? नंबर 1, महानगर क्षेत्र में नगर पालिकाओं और पंचायतों द्वारा तैयार की गई योजनाएं। नंबर 2, नगर पालिकाओं और पंचायतों के सामान्य हित, जो उनके जो कॉमन इंटरेस्ट्स हैं वो उनके विषय में, जिनके अंतर्गत उस क्षेत्र की समन्वित स्थानीय योजना, जल और अन्य भौतिक और प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सा बटाना। जो समान डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जा रही है, इक्वल जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो भी भौतिक प्राकृतिक जो रिसोर्सेस हैं उनका समान वितरण और अवसंरचना का एकीकृत विकास, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, एकीकृत विकास और पर्यावरण संरक्षण। उसमें जो पर्यावरण संरक्षण, आजकल जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है या जो उद्योग धंधे संचालित किए जा रहे हैं, उनसे क्या है, हमारे जो नगर हैं, हमारा जो देश है, हमारा जो राज्य है, वो सब क्या हो रहे हैं, प्रदूषित हो रहे हैं। तो यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन की बात की जा रही है। उसके लिए 1972 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी बनाया गया था, जिसके तहत सबको बचाना है। पर्यावरण में जो वन्य जीव हैं उनको भी बचाना है, वाइल्ड लाइफ, इन सब का संरक्षण करना है। नंबर 3, भारत सरकार राज्य सरकार द्वारा निश्चित समस्त उद्देश्य और पूर्विकताएं। नंबर 3, भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा निश्चित समस्त उद्देश्य और पूर्विकताएं। नंबर 5, उन विधानों की मात्रा प्रकृति जो भारत सरकार और राज्य सरकार के अभिकरणों द्वारा महानगर क्षेत्र में किए जाने की संभाव्यता हो। अन्य उपलब्ध वित्तीय या अन्य संसाधन, जो भी अन्य उपलब्ध वित्तीय हैं
या अन्य संसाधन उनके अकॉर्डिंग। नंबर खा ऐसी संस्थाओं और संगठनों से परामर्श करेगी जिन्हें राज्यपाल आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें, और उसके साथ में ऐसे संगठनों और संस्थाओं से भी परामर्श करेगी जिन्हें राज्यपाल आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें। नंबर 4, प्रत्येक महानगर योजना समिति का अध्यक्ष व विकास योजना जिसकी ऐसी समिति द्वारा सिफारिश की जाती है राज्य सरकार को भेजेगा। तो ये तो हो गया आपका अनुच्छेद 243 या यानी 243 ZE। तो आज के लिए इतना ही, कल मैं पढ़ती हूँ दूसरा आर्टिकल। तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत।